He is Anandam. My name is Professor Rahul Tiwari, and I am working in Assistant Professor in Mechanical Department. So today our topic is working of four-stroke petrol engine. So in BME we start working of four-stroke petrol engine. First of all, we have to see what is four-stroke engine. Basically, a four-stroke engine is an internal combustion engine that utilizes four distinct piston strokes to complete one operating cycle. And one complete operations in a four-stroke engine requires two revolution, about 720 degree of crankshaft. It means कि वो 360 एक पूरा चक्कर काटेगा और 360 एक और चक्कर काटेगा, तब जाके एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगी और फोर स्ट्रोक इंजन को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली उसमें चार स्ट्रोक होते हैं। देर आर फोर स्ट्रोक गिवन बोलो, देट आर सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। एंड ईच स्ट्रोक में ईच जो सक्शन होता है, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो जो हबी सभी स्ट्रोक होते हैं वो अराउंड 180 डिग्री के होते हैं। इसीलिए 180 डिग्री सक्शन, 180 डिग्री कंप्रेशन, 180 डिग्री पावर एंड 180 डिग्री एग्जॉस्ट। सो बेसिकली parts of a four-stroke petrol engine. Let's see: piston, crankshaft, connecting rod, flywheel, inlet-outlet valve, spark plug. Piston, an engine piston transfer expanding forces of gas to the mechanical rotation of a crankshaft through a connecting rod. Crankshaft is a part of that converts reciprocating motion into rotary motion. Connecting rod, it transfer motion from piston to a crankshaft. Flywheel basically stores energy, and it is also a rotational mechanical device. And you have no inlet and outlet valves also attached in four-stroke petrol engine, where fresh air enters from inlet valve and burned gases out from exhaust valve. After that, there is also a spark plug which delivers electric current to the combustion chamber, which ignites the air-fuel mixture, leading to gas expansion. These are the parts of a four-stroke petrol engine which are attached in a four-stroke engine. So we start from suction stroke. बेटा सक्शन स्ट्रोक, बेसिकली सक्शन स्ट्रोक यही होता है कि सक्शन स्ट्रोक में पहले सबसे पहले हम पेट्रोल इंजन अगर है तो सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा। कहाँ से जाएगा? फ्रॉम इनलेट वॉल्व से जाएगा। इनलेट वॉल्व से जाएगा, यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर जाएगा फ्रॉम इनलेट वॉल्व। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एग्जॉस्ट वॉल्व जो रहेगा वो क्लोज रहेगा, और इस ड्यूरेशन में पिस्टन जो होगा मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा और वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर होगा और फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा कंबशन चैम्बर में। यही वो लिखा भी हुआ है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड बाय द इंजन क्रैंकशाफ्ट either by the momentum flywheel or electric motor. During this stroke, piston moves downward and creates vacuum inside the chamber. Inlet valve opens during the stroke, allowing the air-fuel mixture to enter the combustion chamber. जो मैंने आपको भी बताया हिंदी में वही इंग्लिश में मैंने रिपीट किया है। इट मीन्स ऑल्सो कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा, वो फ्लाईव्हील की एनर्जी की वजह से भी जाएगा, क्योंकि इसमें एयर और फ्यूल का फर्स्ट कम एयर मिक्सचर आता है अंदर, और ये हमारा सक्शन स्ट्रोक इसमें कंप्लीट होता है। और इसी की ड्यूरेशन में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, ये 180 डिग्री ये रोटेट करेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था 180 डिग्री सक्शन स्ट्रोक के लिए, 180 डिग्री कंप्रेशन के लिए, 180 पावर के लिए एंड 180 डिग्री एग्जॉस्ट के लिए। सो दिस इज द सक्शन स्ट्रोक, basically one stroke. Second stroke is compression stroke. When piston at BDC when piston moves from BDC to TDC, this stroke, compression stroke will happen. कैसे होता है ये मैं एक बार इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। During this stroke, piston moves upward and compresses the charge, basically air or fuel mixture, and the heat produced by the compression, no homogeneous mixture of air and petrol inside the cylinder.
and this heat makes it easier to burn. Or during this process, both inlet and outlet valve are closed. These inlet and outlet valve are closed, and this piston moves from BDC to TDC. बेसिकली ये हो क्या रहा है, पिस्टन जो हमारा है, जब यहाँ बीडीसी पे था पहले स्ट्रोक के एंड में, सक्शन स्ट्रोक में, और ये धीमे धीमे ये मूव करेगा टीडीसी के तरफ, और जो ये हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में आया हुआ था ये कंप्रेस होगा और बहुत ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और जिसकी वजह से बहुत इजीली बर्न हो जाएगा अगले पावर स्ट्रोक में। और इस स्ट्रोक में इनलेट और आउटलेट, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल जो होगा वो बंद होगा, ओपन होगा, क्लोज रहेगा, सॉरी। और ये मैंने जो बताया था आपको कंप्रेशन स्ट्रोक में, ये इस पिस्टन बीडीसी से टीडीसी ट्रेवल करने में ये 180 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। और थर्ड स्ट्रोक होता है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द मिक्सचर अंडर कंप्रेशन is ignited by this spark plug, and the expansion of gases of heat in the combustion creates a pressure on the piston and the cylinder walls, and this pressure helps the piston to move downward, and during the stroke piston moves downward. Both inlet and outlet valve remain closed during this process. It means this is the power stroke. मतलब हमें यहाँ से वर्क मिल रहा है, वर्क हम दे नहीं रहे हैं, वर्क मिल रहा है। वर्क पर कैसे मिल रहा है कि जैसे ही कंप्रेशन में ये एयर फ्यूल मिक्सचर गैस जो है वो कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कंप्रेशन मिक्सचर में इग्नाइट हुआ बाय द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, और इग्नाइट होने के बाद यहाँ बर्न होता है जो मिक्सचर, बर्न करने के कारण जो ये पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स इसकी हेल्प से, और कुछ एनर्जी हमारी फ्लाईव्हील में स्टोर होती है। यहाँ से जो एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि पावर है, वर्किंग स्ट्रोक है, ये वर्किंग पावर है हमारा, और ये इसमें पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी जाता है, और यहाँ पर हमें वर्क मिलता है जो कि कुछ एनर्जी हमारी फ्लाईव्हील में स्टोर होती है, और कुछ एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ड्यूरिंग सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। यही इसलिए होता है, ये वर्किंग है। ये केवल एकमात्र स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। एंड एट द लास्ट दिस इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक दिस एग्जॉस्ट वॉल ओपन्स एंड इंटेक वॉल क्लोज्ड। मैं आपको इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द इनलेट वॉल रिमेन क्लोज्ड एंड एग्जॉस्ट वॉल रिमेन ओपन। During this stroke, the piston moves upward and pushes the burned gases out through the exhaust valve, and only a small amount of exhaust gases remains in the clearance space, which gets diluted with the fresh incoming charge from next suction stroke. इसका मतलब यही है कि जब कम एग्जॉस्ट हमें पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन यहाँ रहता है अपने बीडीसी पे, तो जो हमारी बर्न गैसेस होती हैं, जैसे हमें वर्क मिल गया है तो अब हमें बर्न गैसेस को बाहर भी भेजना है। अब बर्न गैसेस क्या होगा, ये हमारा पिस्टन जो होगा, ये फ्लाईव्हील जो होगा हमें इसको एनर्जी देगा, और पिस्टन जो होगा वो मूव करेगा ऊपर, फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा, और जो ये बर्न गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट वॉल के से पास होके बाहर निकल जाएगी इन द फ्रेश एयर। और इस प्रोसेस में इनलेट वॉल्व क्लोज रहता है। और ये भी एक डिसएडवांटेज भी है कि इसमें पूरी बर्न गैसेस ऊपर नहीं जा पाती हैं बाहर, कुछ गैसेस रह जाती हैं, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ, और जो कि डाइल्यूट हो जाती हैं और विद द फ्रेश इनकमिंग चार्ज ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। अब ये चारों स्ट्रोक जो होते हैं रिपीट होते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं। और ये मैंने आपको बताया है, एक स्ट्रोक जो होता है 180 डिग्री रिवॉल्व करता है, जिसे 180 इंटू 180 इंटू 4 इक्वल टू 720 डिग्री। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंजन रिक्वायर्स टू रिवोल्यूशन, मतलब वन रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री एंड टू रिवोल्यूशन इज 720 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट, जो कि हमारी साइकिल को कंप्लीट करता है। और इसमें इस टाइप ऑफ इंजन फोर स्ट्रोक पिस्टन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द साइकिल
और फोर स्ट्रोक जो होता है मेक्स टू रिवोल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ईच रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट हैज टू पावर स्ट्रोक। अब दो रिवोल्यूशंस, आपको पिस्टन आपने आपने देखा है कि 360 में एक रिवोल्यूशन करता है और 360 एक और रिवोल्यूशन करता है। तो इसमें सीधी सी बात है बेटा कि हमें वर्किंग स्ट्रोक जो होता है हमारे स्ट्रोक में मिलता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो हमारा है स्ट्रोक में मिलता है। ये था हमारा वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। और आई होप that you can understand this topic very well. Thank you.